Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta, Masters in Law from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss problem-based questions on the topic free consent. I have told you in my earlier session that free consent is an essential element for a contract. There must be free consent to make a valid contract. If there is no free consent, then your agreement is not valid. Okay, वो क्या होएगा? Voidable. So let us start with the problem. Mrs. Geeta brought an action against her husband Naresh for declaring an agreement void on the ground that its execution was induced through the husband's undue influence at a time when she was suffering from a serious nervous breakdown and was not mentally competent to appreciate the nature of or quality of her acts. She stated that her nervous breakdown was a result of maltreatment by Naresh having adulterous relationship with Shruti. तो अब इस क्या ये क्वेश्चन क्या, पहले इसमें फैक्ट्स देखो इसका क्या है. गीता ने अपने हस्बैंड अगेंस्ट केस फाइल किया. हस्बैंड का नाम नरेश है. ये डिक्लेयर करने के लिए कि एग्रीमेंट वॉइड है. किस ग्राउंड पे? कि जो उसकी एग्जीक्यूशन थी दैट वाज इंड्यूस्ड हस्बैंड्स अंड्यू इन्फ्लुएंस एट अ टाइम व्हेन शी वाज सफरिंग फ्रॉम सीरियस नर्वस ब्रेकडाउन. ठीक है, वो कह रही है कि वो मेंटली शी वाज नॉट कम्पिटेंट टू, पता ही नहीं उसको कि फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस क्या है केस. उस वजह से उसके हस्बैंड ने प्रेशर डाला, इंड्यूस किया उसको, इस वजह से उसने एग्रीमेंट किया था. She stated that her nervous breakdown was the result of maltreatment by her husband having adulterous relationship with Shruti. कि उसके हस्बैंड का किसी के साथ रिलेशनशिप था, वो लड़की का नाम क्या था? श्रुति. सो उस वजह से वो उसको बहुत अपनी वाइफ को गीता को बिल्कुल माल ट्रीट करता था. इस वजह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया. During her confinement in the hospital, Naresh presented an agreement prepared by solicitor, relinquishing all rights to maintenance and transferring to Naresh 50 acres of land, which was in joint name for consideration of rupees 5,000 only, and she was made to put her signature under his influence. Discuss whether Mrs. Geeta would succeed in her action. Okay. तो क्या है, जब गीता हॉस्पिटल में थी, नरेश एक एग्रीमेंट लेके आया कि सॉलिसिटर ने जो प्रिपेयर किया था वहाँ पे क्या उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था? relinquishing all rights to maintenance and transferring to नरेश 50 acres of land. Is it clear? जो कि जॉइंट नेम पे था फॉर कंसिडरेशन ऑफ रुपीज़ 5,000 ओनली. 50 acres ऑफ लैंड फॉर कंसिडरेशन ऑफ 5,000 ओनली. और उसको कहा गया था यहाँ पे अपने सिग्नेचर्स दे दो. नाउ डिस्कस वेदर मिसेस गीता वुड सक्सीड इन हर एक्शन और नॉट. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज डू राइट द फैक्ट्स पॉइंट वाइज. नाउ विच लॉ विल इट इज़ रिलेटेड विद फ्री कॉन्सेंट. सेक्शन 14 डिफाइंस फ्री कॉन्सेंट. व्हाट इट सेज? Consent is said to be free unless given by coercion, undue influence, misrepresentation, fraud, misrepresentation, mistake. So this case is related with undue influence. So Mrs. Geeta will succeed in her action क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशनशिप था हस्बैंड वाइफ का वो किस पे बेस्ड था? फिड्यूशरी रिलेशनशिप पे. दैट इज़ सेक्शन 16 क्लॉज 2. ठीक है, तो वहाँ पे जब ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड था. और यहाँ पे और दूसरी बात है, गीता ही वॉज अंडर मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल कैपेसिटी उसकी अफेक्टेड थी. इस वजह से यहाँ पे गीता सक्सीड करेगी अपने एक्शन में. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, the government has notified an order under an appropriate statute that no one shall buy or sell a particular explosive substance except under a license obtained by specified authority. A has obtained a license to buy, but B, who has no license to sell, represents to A that he has license to sell and induces him to enter a contract for the sale of certain quantity of explosives. A pays a part of the price.
A learns that B has no license to sell and has no chance of obtaining it with a reasonable time. Can A sue to recover the adverse paid if B delivers the commodity as promised? Can he recover the balance of the price from A when it is clear to the court that sale is prohibited? तो अब इसमें क्या है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है. क्यों? क्योंकि फ्रॉड कमिट किया है बी ने. सो इस वजह से ए अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, रिसाइन कर सकते हैं. ए कैन स्यू टू रिकवर द एडवांस पेड. ए के पास राइट है, वो कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं कोई किसी भी डैमेज के लिए जो उसको हुआ है. इज इट क्लियर? सो इफ बी डिलीवर्स द commodity as promised, then he cannot recover the balance of the price from A, as that would amount to fulfillment of an unlawful contract. However, in the present situation, A has to return the goods to the B. Is it clear? Now let us discuss some other problem based questions. A offers to sell a house. A offers to sell a house on 25th January 2020 to B for rupees 90,000. Is it clear? उन्होंने कहा है कि A ने ऑफ़र किया कि उसको अपना घर बेचना है. B को कहा उसने 90,000 में बेचना चाहता है वो. लेकिन बी कहता है कि मेरे को 80,000 में ख़रीदना है. ये क्या हो गया? काउंटर ऑफर. उसने 90,000 का ये कहा, नहीं 80,000, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज ही नहीं हुआ. चलो, ये जो ऑफ़र था बी का 80,000 में, वो ऑफ़र ए ने रिफ्यूज़ कर दिया. ए जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि उसको 80,000 में नहीं बेचना है. इज इट क्लियर? अब कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम डेज, जो बी था, बी ने अगेन ही रोट अ लेटर टू ए. अगेन ही रोट अ लेटर टू ए एंड ही रोट इन लेटर दैट ही वॉज नाउ प्रिपेयर टू पे रुपीज़ 90,000 फॉर दैट हाउस. अब ए जो ओनर था उसने घर बेचने से मना कर दिया. Now B filed a suit against A for the breach of contract. How would you decide? Give reason. अब पहले तो आप ये देखो कि उसने जो बी ने ए के अगेंस्ट केस फाइल किया वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो बात की बात है. पहले आप ये देखो इसमें क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज हुआ या नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ या नहीं हुआ. अगर आप सेक्शन 7 देखोगे, सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट सेज दैट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. बट इस केस में क्या एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड है? फर्स्ट ही ऑफर्ड 90,000, परचेज़र क्या कह रहे हैं, नहीं 80,000 में ख़रीदना है. 80,000 में ख़रीदना, ओनर ने मना कर दिया. ख़त्म हुई बात. आफ्टर सम डेज़ अगेन जो परचेज़र था उसने ही रोट अ लेटर टू दी ओनर कि नाउ ही इज़ प्रिपेयर टू पे रुपीज़ 90,000. ओनर ने मना कर दिया कि उसको घर नहीं बेचना है. नाउ परचेज़र हैज़ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो जब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही अराइज नहीं हुआ है तो हाउ विल देयर बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? So there was no binding contract between the parties. Now in the next session we are going to discuss the further topic. In my previous sessions I have discussed till free consent. Next topic will be capacity to contract. Thank you.